All right, so we have done the starter activity. Okay, yesterday I didn't spoke much about the starter activity. Starter activity can be anything. If you are not available with music, sound, or computer screens or such things, then you can have a starter activity of your own. Later, I will tell you what can be those starter activities. So make a list of starter activities also while preparing your lesson plans. Acha, one more thing, dear. Do you all easy with English language, or should I talk in Urdu language also? Just tell me, are you all comfortable with English? Yes, ma'am, we are comfortable. Sure. That. Yes, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. जी जी सबा. मैम हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं ना, दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ विद इंग्लिश, तो मैम काइंडली अगर आप थोड़ा उर्दू में भी ब्रीफ कर दें तो. ठीक है, it's okay. That's why I'm asking, because a few of the members have joined me from rural areas also. उनके लिए मैं पूछ रही हूँ कि if you they are not comfortable, तो मैं साथ साथ इंग्लिश में भी और उर्दू दोनों में बताती जाऊंगी, ठीक है ना? यस मैम, थैंक यू. वेलकम डियर. अच्छा जी, सो क्या बात करी थी? वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार्टर एक्टिविटीज. Starter activities are also called warm up activities. Okay, opening activities, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? So they are opening activities also, starter activities also, warm up activity also. If you are not having screens, अगर आपके पास screens नहीं है, projectors नहीं है, laptops नहीं है, mobiles की उस तरह से facility, क्योंकि sometimes हम schools में mobile भी हमें allow नहीं होता classroom में रखना, अगर ये facilities आपके पास नहीं है, तो then you can plan so many other starter activities. Please spend 5 to 10 minutes in your classroom on your starter activities. This is for every teacher. It's not for the kindergarten teacher. It's for primary, secondary, college, everywhere, universities even. Please have some starter activity. It seems so boring that a teacher enters in the classroom with on her mood swings, and then she opens a book, and then she start taking the lecture. ठीक है? यूजुअली यही होता है. जो सब्जेक्ट टीचर होती है या जो क्लास टीचर होती है, वो चलो क्लास टीचर अपना थोड़ा टाइम लगाती है, शी टेक्स अटेंडेंस आल्सो एंड ऑल दोस थिंग्स एंड मेक द चिल्ड्रन यूज्ड टू ऑफ द क्लासरूम. बट यूजुअली जब हम सब्जेक्ट टीचर्स क्लास में जाते थे, तो हम यही होता है कि सब्जेक्ट टीचर जाते साथ ही बस टर्न किया, टेक आउट द बुक, टेक आउट द नोटबुक्स, टेक आउट योर पेंसिल, ड्रॉ द मार्जिन लाइन, राइट डेट एंड डे ऑन द बुक. बस हम इस तरह से शुरू हो जाते हैं और बच्चे का एक मोरल डाउन. अब आप देखिए, अगर हर सब्जेक्ट से पहले यूजुअली आपके समटाइम्स एक क्लास होती है, समटाइम्स जो है वो कंबाइंड क्लासेस भी होती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जैसे यूजुअली इंग्लिश या उर्दू की जो आपकी बेसिक कोर सब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी दो दो क्लासेस भी होती हैं. तो आप सोचें कि अगर हर टीचर आने से पहले 5 मिनट अपने बच्चों को दे देगी एक स्टार्टर एक्टिविटी के लिए, तो वो अगले 45 मिनट या अगले जितना भी टाइम होगा, चाहे वो 30 मिनट्स है, 35 या 45 मिनट्स है, वो आपके बच्चों का बहुत अच्छा गुजरेगा. आपकी भी उनके साथ एक इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो टीचर उनको वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है कि बच्चों के साथ उसके लेवल पर आके बात करते हैं. आप बच्चों को खुश करते हैं, वो आपको खुश करेंगे. ठीक है ना? बात सिर्फ ही होती है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है. आजकल के तो माशाल्लाह बच्चे भी इतने शार्प है कि दे ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. तो प्लीज प्लान सम स्टार्टर एक्टिविटीज लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द सेशन. वो हमारी लेसन प्लानिंग में भी आता है. मैं आपको बताऊंगी कि किन किन तरह की स्टार्टिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं और आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. All right, so we also started with the starter activity which you all like a lot and you enjoyed that. Moving to the next one. So we talk about also what makes you a good teacher. There are so many things which can make you a good teacher. Those things were we have discussed about all this yesterday also. A passionate teacher, a teacher should be passionate. She should have effective communication. He, she, both. Okay, both lies in that. Adaptability, you should adapt all the things. Yesterday I had a conversation regarding the lesson plans, regarding the reflective diaries, and then board making. Dear, ये सब कुछ आपको teaching field में करना ही पड़ता है. Okay, you have to prepare your kids for the morning assemblies also. You have to prepare them for the presentations also. With those presentation, if there is something like that, where you have to prepare boards, you have to prepare some charts, और जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर काम है वो टीचर को करना ही पड़ता है. Somebody's mic is turned on. Please turn off your mics. माइक मैंने इसलिए टर्न ऑन रखा हुआ है
कि मतलब मैं उसको परमानेंटली म्यूट नहीं करी, ताकि अगर मुझे कुछ पूछना हो तो मैं आपसे इजीली कम्युनिकेट कर सकूं। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारे काम करने ही करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक व्हेन यू एंटर एनी प्रीमिसेस दैट प्लेस इज योर्स नाउ। ठीक है, प्लीज आप उस चीज को जो है ना वो ऑन करें। देयर मस्ट बी एन ऑनरशिप इन अ टीचर, इन एवरी टीचर। ठीक है, ऑनरशिप का क्या मतलब होता है कि देखिए, जैसे आपका घर है, you always want your home to be very good for the ones who are coming from outside. Even nobody is coming there, but you want everything settled. ठीक है, आपको आप चाहते हैं हर जगह हर चीज अपनी जगह पे हो, पूरे घर की। सेम गोज फॉर योर स्कूल ऑल्सो। ठीक है, ऑन योर स्कूल यू शुड हैव द हैबिट एंड यू शुड हैव द क्वालिटी एज अ टीचर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप की क्वालिटी को प्लीज अपने अंदर लेके आए। योर क्लास इज नॉट ओनली योर क्लासरूम। ठीक है, यू आर नॉट हियर फॉर एंटरटेन योर किड्स ओनली, you are a role model for every single child in your school, and you have to take that ownership also. If you saw something in the corridors, in other classrooms, in your way to in your way towards your classroom, in your grounds, whatever is there, if you cannot pick, if you don't want to pick, let the children pick up, let the children sort out those issues, but do involve in that and let your child involve in also. My kids used to clean their my in everywhere, like my in the journey of last 16-17 years, I have never ever clean up my class ever. My kids used to do that. Montessori system में जो हुए हैं, or the ones who are Montessori directresses also, they know this thing very better, that they are having last 20 minutes for cleaning up. They used to do brooming also, they used to do mopping also, and they have their small mops, they have their small brooms, and that dustpans also. They used to clean their classes, they used to arrange their materials on their specific places by themselves. Whatever they totally clean the classroom, they even make the beds also. Why we teach them all those things in EPL? Making the bed, folding the napkins, pouring the cups, or pouring the water and all those things. Why we told them? This is the reason, because they have to do all those things by the end of the day. उनको ये सारे काम by the end of the day करने होते हैं। 20 minutes होती है क्लीन अप के लिए। अब जिस तरह से जो होमरूम टीचर्स होती हैं, जो सारा दिन एक ही क्लास में रहती हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल एंड पे 20 मिनट्स देती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल ऑल्सो। वी आर हैविंग 20 मिनट्स टू क्लीन अप here in UAE. It is must. Daily we are having fruit time also, where kids bring fruit and they have to eat that fruit in that fruit time. 10 minutes for fruit time and 10 minutes for clean up the classroom. Everything, whatever they do in the classroom, they have to keep the things on their places, whether they are books, they are materials, whatever those things are there, they have to clean up their classroom. So आप अपने ऊपर बर्डन ना लें, क्यों हर बच्चा नहीं करता, ये भी मैं आपको बता दूं। नॉट एवरी चाइल्ड डू दैट थिंग। आप हर बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि आपके 20 के 20 बच्चे वो सारा काम करेंगे। दे आर वेरी फ्यू इन दैट। लेकिन क्या होता है, ग्रेजुअली व्हेन टाइम इंक्रीजेस एंड दे सी अदर चिल्ड्रन डूइंग दैट वर्क, ना दे आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। So please take the ownership also. One very important point to make you a good teacher is ownership, which is not mentioned over here. But please, adaptability, empathy, patience, passion, effective dedication, strong lifelong impact, all means ownership. Take the ownership. ठीक है, ऑनरशिप के लिए आपको कोई मैम मना नहीं एक्सक्यूज मी, करेगा। जी जी मैम आपने जो अभी बात की रिवाइज की थी कि जो एम्पैथी या पेशेंस होते हैं, जो छोटे बच्चों को, जो अर्ली एज के बच्चे होते हैं, हमें टीचर्स में सबसे कि वो पूरा दिन बच्चों के साथ होती है। और हमारे यहाँ तो जो स्कूल होते हैं उनके साथ टीएस भी होती है ना, जो बिल्कुल वो हैंड ओवर करे। कि टीचर का ये है कि वो ऐसा करे कि उसके लिए एम्पैथी और पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं अर्ली एज बिल्कुल। के। ना हम मार सकते विदाउट हैं, एम्पैथी, ना डांट सकते हैं उनको। yes, without empathy and patience you can't do anything. You are not a teacher if you are not having यस, empathy and patience towards your child. And it's not about उनको जी जी it's not about उनको ऐसे preschoolers. होल्ड करना है जैसे उनके हमारे अपने बच्चे हैं। हमें इस बिल्कुल तरह से उनको डील करेंगे तो ऐसा और जितना हमको विजुअल लर्निंग आपने कल बताई थी, तो जितना हमको विजुअल लर्निंग देंगे उतना ही बच्चा सीखेगा। बिल्कुल we'll क्योंकि have आजकल बच्चा विजुअल लर्निंग से चल रहा है, जी we'll have उसको this वो ही answer समझता है। जी question answer session we're going to have at the end of the session. So empathy or tuition, see empathy or tuition जो patience है, it's not for the early childhood. ठीक है, इट्स फॉर यस, एवरीवन। एम्पैथी और पेशेंस तो आपको थ्रू आउट एज अ टीचिंग कैरियर अपने में रखना है, चाहे आप
किसी डॉक्टर को टीच कर रहे हैं, या फिर आप किसी इंजीनियर को टीच कर रहे हैं, या एक 3 साल के बच्चे को कर रहे हैं. एम्पैथी एंड पेशेंस इज मस्ट टू मेक अ चाइल्ड लेकिन मैम पर्सनालिटी. ये है कि हम छोटे बच्चों को नहीं, अगर हम बड़े बच्चों को पढ़ाते उसके लिए भी टीचर को एम्पैथी और पेशेंस रखना पड़ेंगे. जी जी अगर जी, हमें अपने यही मैंने बच्चों को कहा. दोस्त बनाना है तो जिससे जी हमें पढ़ाना है, हम एग्जैक्टली चाहते हैं बच्चा हमारी तरफ आए, भागे नहीं बच्चा पढ़ने से. एग्जैक्टली उसके लिए एग्जैक्टली जोर एग्जैक्टली. जबरदस्ती कुछ भी नहीं होना चाहिए. Yes, true. Okay, we'll have a answer question session at the end of this session. Okay, dear? जाओ मैम. ओके. Okay, thank you. All right. So next we are having what is an effective learning. So what is an effective learning? What does describe that what effective learning is? Basically, we in Pakistan, there are two teaching systems, two learning systems we are following. One is teacher centered and one is child centered. Usually we used to say the schools who are following child centered learning, they also used to say कि हाँ जी हमारा बच्चा ही सारे काम करते हैं. We never explain to the children, लेकिन ऐसा नहीं है. When you are saying that it is children centered environment of learning, then this means कि it is totally children centered. ठीक है, फिर वो totally children centered है, उसमें फिर टीचर का कोई रोल नहीं है. टीचर का रोल एक्सप्लेनेशन तक है, वो कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. अदरवाइज यू आर टीचर सेंटर्ड, हम टीचर सेंटर्ड ही हैं. पाकिस्तान में वी ऑल आर टीचर. जो कहते हैं कि इट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट, टोटली रॉन्ग. बिकॉज टीचर ही जाके लेक्चर देता है, टीचर ही जाके गाइडेंस देता है, टीचर ही जाके बच्चे को जो है वो सारा कुछ काम करने में, हर चीज करने में टीचर ही उसको हेल्प कर रहा है. इवन इवन इन एग्जाम्स वो भी आप टीचर ही हेल्प कर रहे हैं. तो हाउ कैन यू से दैट इट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी, इट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग सेंटर? ऐसा नहीं होता. जब बच्चे का है तो यू हैव टू, उसमें भी कैटेगरी आ जाती है कि आपने बच्चे को किस हद तक फ्री रखना है और किस हद तक नहीं रखना. लेकिन यूजुअली जब चाइल्ड सेंटर्ड की बात आती है तो देन इट इज टोटली चाइल्ड सेंटर्ड. It should be totally child-centered. A method of teaching and learning that actively involve children in their own learning and personal development. ठीक है, that is the effective learning and that is called the child-centered learning. और उसमें और भी बहुत सारी चीजें आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आगे भी एनहांस होके आती हैं. लेकिन अगर आप कहते हैं कि यू आर गिविंग एन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड सेंटर और उसमें फिर टीचर्स की सारी इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट कैन नॉट बी चाइल्ड सेंटर. ठीक है, उसमें आपने बच्चे को ही इतना इंडिपेंडेंट करना है कि वो अपना काम खुद करे. हर बच्चा भी नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हर बच्चा भी नहीं कर सकता. हर बच्चे की अपनी कैटेगरी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज वो हर काम कर सकती है. ठीक है, तो देयर आर हियर आर द फ्यू पिक्चर्स ऑफ children involving their own activities. They are 5 years old. ठीक है, all of them are 5 years old, not more than that. 5 और 6 की रेंज में है. ये कटिंग भी खुद करती हैं, पेस्टिंग भी खुद करती हैं, जैसी मर्जी करें, उल्टी करें, सीधी करें, ऊपर करें, नीचे करें, इट्स अप टू देम. हम इनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या करना है आपने, बाकी ये सारा काम खुद करती हैं. ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर. अगर हमने कुछ मटेरियल उनको दे दिया, उन्होंने उससे मटेरियल से कुछ बनाना है, तो वो उनकी उनके अपने ऊपर है वो उससे क्या क्रिएट करती है. टीचर विल नॉट टेल देम. जैसे हमारे यहाँ आर्ट वर्क में यूजुअली जो हम मोंटेसरी में या हम अर्ली लर्नर्स को, इवन ग्रेड 1, 2, 3 प्राइमरी सेक्शन में भी हम अक्सर आर्ट वर्क कराती हैं. और हम बच्चे को अगर कहते हैं कि आपने सीडलिंग करनी है, या हम बच्चे को कहते हैं आपने हैंड प्रिंटिंग करनी है, तो हम उसको बता देते हैं भाई ये कलर है और ये प्लेट है, इसी में हाथ रखना और इस पेपर पे लगा देना. दैट्स इट. आपको क्या पता वो बच्चा उससे क्या क्रिएट कर सकता है, हो सकता है उसकी क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिविटी से कहीं ज्यादा हो. तो हमारे यहाँ फ्री हैंड है, हम मटेरियल सारा रख देते हैं, बता देते हैं कि ये मटेरियल है, ये चीज है. नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट विद दैट मटेरियल. और हर बच्चे की लर्निंग अपनी उसके हिसाब से होती है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ what are the effective methods of learning which I'm telling you कि देखिए effective method of learning, there are so many effective methods of learning which you can utilize. Wait, let me move this on the top. ठीक है, what are the effective methods of learning? Now learning through technology which involves everything. Somebody said something. Assalamu alaikum, ma'am. जी जी वालेकुम अस्सलाम. Can I ask something? जी जी शो.
मैम क्या आप ये स्लाइड्स ग्रुप में शेयर करेंगी या हमें ये लिखना होगा अपने पास? नहीं, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। इसका स्लाइड्स तो शेयर नहीं करूंगी, लेकिन वर्ड पे इसका डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप लिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि हर चीज को डिस्क्राइब कैसे करना है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, लर्निंग through technology, what means wherever the technology is involving, it can be projectors also, it can be video aid also. Acha, when we are working with young scientist activity, that is also called learning through technology. When we are working with little chefs activity, that is also called learning through technology, because all those things are involved with technology and they are using, if you have heard about the STEAM or STEM, okay na? Learning through STEAM and STEM, this is basically learning through technology. STEAM means STEM. STEAM means science, technology, science, technology, engineering, and mathematics. And STEM means, STEAM means science, technology, engineering, art, and mathematics. And STEM means science, technology, engineering, and mathematics. So usually STEAM is more prominent these days, because art is also considered as a part of the learning. Without art, there is nothing. Why? Because creativity is always comes with the art. So whatever they are creating with STEM, that is called art. Okay. So STEAM is more common as far as STEM. Okay. In-person discussion and individual learning, you know that in lower levels, especially in Montessori or kindergartens or in nurseries, we are having in-person discussions or individual learning. We used to have kids. We used to give them individual learning. एक एक बच्चे को individual learning दी जाती है या टेबल टू टेबल होता है। और जो स्लो लर्नर्स होती हैं उनको तो completely चाहिए आपको कि आप उन बच्चों को individual learning ही दें। हर बच्चा क्लास में स्लो लर्नर नहीं होता। There are very few, 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं, and your focus should be those kids only. ठीक है ना? क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्ची हैं वो तो आपकी एक दफा में बात समझ आएंगे। वो मिड इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको भी इतना ज्यादा वो दूसरे फ्रेंड्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं। पीर हेल्प शुड बी देयर, ठीक है। और जो बिल्कुल डल बच्चे होते हैं, असल में जरूरत उन बच्चों को हमारी होती है, और हम उन्हीं बच्चों को निग्लेक्ट कर देते हैं और उन्हीं बच्चों को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सेम, दीज आर ऑल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज विच यू सी ऑन द in these pictures. ठीक है, give them materials, give them tasks, give them papers, give them flashcards or whatever the requirement of that topic is, and they will do the hands-on activity. You can give them Play-Doh also, you can give them whiteboards also, you can give them paper or pencil also, whatever is there, that is called hands-on activity. Question that challenge the learners. Okay, sometimes we ask close-ended questions. Close-ended questions are called which gives you accurate answer. For example, if you tell them any story, if you tell them any topic, and you ask them how many characters were in the story, they will say 3 or 4. What was the main character? They will tell you the name of the character. Okay, mostly children will also answer you these things. वो ज्यादातर ये जवाब आपको दे देती हैं, because they are called close ended questions. इन चीजों को लिख लीजिए ताकि आपको लर्निंग में हेल्प हो कि आपने अपने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, जिनको शायद पाकिस्तान में लॉट्स एंड हॉट्स भी कहा जाता है। Lower order thinking skills and higher order thinking skills. These are two different thinking skills. और यहाँ पर हम इनको close ended and open ended questions कहते हैं। Close ended question मैंने आपको बता दिया, which give you accurate and correct answers, and mostly learners will give you those answers. Mostly will give you those answers who are attentively or not attentive, but they will give you those answers. Close ended questions ये हो गए ना open ended question, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन सी होती हैं? जो आपके लर्नर को चैलेंज करती हैं टू थिंक बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। नाउ हाउ दे आर गोइंग टू थिंक बियॉन्ड देयर कैपेसिटी? फॉर एग्जांपल, you have tell them a story, and in starting you have asked them some close ended questions. Now you are asking them, what if you are the main character of the story? Okay, what if there are more than 4 characters or 3 characters in the story? How would you end the story? ठीक है, these questions are going to challenge your learners, and initially when you start doing this, only very few will answer you who can understand you.
ठीक है। बेशक अगर आपको मुश्किल लगता है इंग्लिश में पूछना या इंग्लिश लर्निंग बच्चों की इतनी हाई फाई नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप उर्दू में भी रिपीट कर सकते हैं, एंड लेट देम गिव आंसर्स इन उर्दू प्लीज. There is no harm in talking in Urdu. I told you yesterday also, but that was the end of the session and I can't continue my chat enough. I was having 7 to 8 students which were typically Tamil speaking. I don't know Tamil. I am Pakistani. How would I know Tamil? Even Hindi, which they are speaking, that is also different. But though there will be a communication between, we can make communication between Hindi and Urdu. They are similar, almost similar. But Tamil और मलयाली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी. You won't believe कि मेरे वो बच्चे मुझे तमिल में ही जवाब देते. मैं उनको कहती थी, if you can't understand, you speak in Tamil, and he give me full answer in Tamil, and I appreciate that child because something or somewhat or something he is sharing his knowledge. ना अगर मैं उसको कह दूं, oh I can't understand, you have to speak in English, तुम इंग्लिश ही बोलो, तुम्हारे पे फर्ज है कि इंग्लिश बोलना. नो, फिर वो बच्चा तो उसकी तो लर्निंग में ही स्टॉप हो जाएगी. एंड दोस किड्स वर इन LS, low achievers. They were low achievers. 3 kids were there. They were friends and cousins also. They lived together. They were like low achievers. They were very dull in studies also, but their capacity of bringing new things were amazing. वो जब बात करने पे आते थे ना, फिर मैं दूसरी टीचर्स को भी बुलाती थी और उनसे कहती थी कि काइंडली ट्रांसलेट, तो मुझे बताती थी. तो आई गेट शॉक कि माशाल्लाह देयर दैट अंडरस्टैंडिंग इज वे फार बेटर देन अदर किड्स. तो इस तरह उनको, और माशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन दे वर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश आल्सो. तो ये बात नहीं होती, अगर उर्दू में बोलते हैं प्लीज, लेकिन डोंट स्टॉप देयर लर्निंग एटलीस्ट. ठीक है, यू आर स्पीकिंग. देखो स्कूल वांट्स दैट आवर टीचर स्पीक इंग्लिश. व्हेन यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वन डे दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये ना सोचें कि वो नहीं बोल सकते. बाय द एंड ऑफ द सेशन दे विल स्टार्ट, बट यू हैव टू हैव इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स मैंडेटरी नाउअडेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये है कि लेट देम स्पीक इन उर्दू आल्सो. They can speak in Urdu. If they want to speak and they want to share something in Urdu, let them speak also. Don't stop their learning in that. So these are few examples of open-ended and close-ended question. Open-ended questions are those questions which gives you accurate answers, which give you close-ended answers. ठीक है, and open-ended will give them challenge. Learners को challenge करें, वो आपके लिए भी बहुत effective होगा, इसलिए क्योंकि you will also come up with so many good ideas. जब बच्चे आपको आंसर करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते, अच्छा इट कैन बी लाइक दैट आल्सो, द आंसर कैन बी लाइक दिस आल्सो. स्पेशली जब ये तो गार्टनर्स हैं, ये तो छोटे बच्चे हैं, ये ऐसे चैलेंजिंग सवालों के इतने जबरदस्त जवाब देते थे कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और वो हमें बहुत हेल्प करता था आगे लर्निंग में. तो आप सोचें जो 2-3 ग्रेड के बच्चे हैं वो आपको कितना अच्छा आंसर उस चीज का दे सकते हैं. ठीक है. Then comes to experimental learning. Experimental learning is also learning through technology. Experimental learnings में आपके EPLs भी आ जाती हैं, आपके sensorials भी आ जाती हैं, उसके बाद आपके जो है वो उसको क्या कहते हैं, आपकी लिटिल ये शेफ एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, यंग साइंटिस्ट भी आ जाते हैं. जितनी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है वो इसके थ्रू आती है. टेबल टू टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड में भी आप जो है वो टेबल टू टेबल भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकते हैं. थ्रू फ्लैश कार्ड्स भी हो सकती है. फ्लिप्ड क्लासरूम. This is a flipped classroom. This picture. It's a flipped classroom. What is a flipped classroom? Where you are a student and your student is your teacher. Put something on the board which you used to do in daily routine. Once in a week or once in a month, try doing this also. कोई भी अपना एक टॉपिक जो आपने पूरे महीने में पढ़ाया हो और वो इंटरेस्टिंग हो, पूरे महीने में नहीं तो माशाल्लाह हम तो पाकिस्तान में एक दिन में एक टॉपिक भी खत्म कर देते हैं, लेकिन वीकली करना चाहें तो दैट इज गुड. अदरवाइज मंथली फ्लिप योर क्लासरूम. बच्चे ने कुछ बच्चों को असाइन करें जिनमें ग्रुपिंग आपने इस तरीके से करनी है कि एक आपका हायर अचीवर बच्चा हो और एक आपका लो और मिडिल अचीवर बच्चा हो. ठीक है, उन दोनों की ग्रुपिंग करें और उनको कहें यू आर गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट वीक, यू आर गोइंग टू बी फॉर 1 डे फॉर 30 मिनट्स और 20 मिनट्स यू आर गोइंग टू बी द टीचर. और टॉपिक आप बोर्ड पे चाहे फ्लैश कार्ड के थ्रू में लगा दें या फिर किसी भी तरीके से आप उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी दे दें, कुछ भी दे दें, या जो भी टॉपिक आपने किया है उसको आप बोर्ड पे लिख दें और बच्चों को कहें कि दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वे यू हैव एक्सप्लेन देम. इससे क्या होता है, एक तो उस जो बच्चे आपके लिए ये चीज प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो रिकैप कर लेते हैं सारी चीज को, चाहे वो आपके साथ करें, चाहे वो आपस में अपने पीयर्स के साथ करें या वो अपने पेरेंट्स के साथ करें. आपको खुद से रिकैप कराने की जरूरत नहीं है, which usually we used to do that. Either we are taking tests from them, either we are taking some oral test from them, or whatever we do, we used to do recap like that. This is the better way.
फ्लिप्ड क्लासरूम को जरूर यूज करें अपनी क्लासेस में। वंस इन अ मंथ भी इनफ है। वंस इन अ मंथ आप अपना एक डे रखें जहाँ पे आप अपनी क्लासरूम्स को फ्लिप करें। अपने स्टूडेंट्स को एक हफ्ता पहले से बताना शुरू करें कि दीज आर द टॉपिक्स इन विच यू आर गोइंग टू फ्लिप द क्लासरूम, बिकॉज थ्रू आउट द मंथ वी कवर सो मेनी टॉपिक्स अनडाउटेडली। इफ यू आर इंग्लिश टीचर तो आप तो बहुत 2-3 तो आप चैप्टर्स भी खत्म करा देते हैं, ग्रामर का भी काफी काम करा देते हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि आप 2-2 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाएं और हर हर बच्चे को आप बेशक उनकी डायरी पे लिखवाएं कि नेक्स्ट वीक दिस डे वी आर गोइंग टू हैव अ फ्लिप क्लासरूम सेशन फॉर 30 मिनट्स, और अपने एक डे में जरूर उसको रखें। प्लीज जो कोऑर्डिनेटर्स अगर यहाँ पर हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज इसको जरूर फॉलो करें। जो टीचर्स हैं प्लीज अपनी आपकी नॉलेज तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी। गुड थिंग्स कैन ऑलवेज शेयर्ड एंड दे मेक अदर गुड ऑल्सो। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि दूसरे जिनको बहुत कुछ आता है वो आपकी बात नहीं सुनते। इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी वेरी कॉमन। लेकिन ये है कि आप जरूर शेयर करें अपनी जो है वो मैम ये फ्लिप नॉलेज को। क्लासरूम का जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। मैं बता रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ। आप ना मुझे मैसेज भी कर सकती है रादर देन टर्निंग ऑन इट ना, यू कैन मैसेज आल्सो, आई रीड द मैसेज इन बिटवीन आल्सो। ठीक है, अच्छा, तो जिन्होंने अटेंडेंस नहीं दी प्लीज वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें। ओके, डियर अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो ये करे कि वो क्लास दोबारा ज्वाइन करे, फिर आवाज आ जाएगी। अच्छा, डियर म्यूट द माइक, राबिया इलियास म्यूट द माइक डियर। अच्छा, फ्लिप क्लासरूम क्या है मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी टीचर्स हैं आप मंथली इसको रख लें, वीकली इज नॉट पॉसिबल। मंथली आपने एक दिन रखना है, चाहे आप वो वीकेंड के बाद रखें या पूरे वीक के एंड पे रखें, फ्राइडे रखें या मंडे रखें, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। आइदर यू चूज फ्राइडे, फ्राइडे हाफ डे होता है तो वो इजीली हो जाता है, या फिर मंडे ताकि वो वीकेंड पे उसकी तैयारी करके आए। You are going to, if say as it is, if you are having 30 kids or 20 kids in your classroom, ग्रुप देम इनटू 3-3, 3-3 का ग्रुप बना दें क्लास में। ठीक है, 3-3 बच्चों का मिक्स ग्रुप बना दें। एक आप एचए से ले लें, एक आप एमए से लेके लें, एक आप एलए से ले लें। मैं आपको बताती हूँ एचए एमए एलए क्या होता है, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू द फ्लिप क्लासरूम, आपने 3-3 बच्चों को पेयर अप कर दिया, उसमें एक इंटेलिजेंट बच्चा जरूर रखें या मिड अचीवर जरूर रखें, और इस तरह से पेयर करें। ये नहीं कि 3 इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो एक ही ग्रुप में आ गए हैं, 3 बेचारे स्लो लर्नर हैं तो उनको आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया कि ये करें या ना करें उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट डू लाइक दैट एट ऑल। प्लीज अपने बच्चों के साथ इस तरह बिल्कुल मत किया करें। अपने बच्चों को मिक्स करें, अच्छे बच्चे और बुरे जो लो लर्नर्स हैं उनको मिक्स करके इस तरह के 3 ग्रुप बना लें। 20 बच्चों को या 25 बच्चों को, 30 बच्चों को, जैसे आप डिवाइड करना चाहें। मैक्सिमम 2 या 3 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर लर्निंग स्टॉप हो जाती है। 2 या 3 बच्चों की ग्रुपिंग करके आपने पूरी क्लास का ग्रुप अपने पास बना लिया। अब जो पूरे मंथ में आपने उनको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसका भी आप टीचर हैं, इंग्लिश का है इंग्लिश के अपने टॉपिक्स लें, आपने स्टोरीज कराई होंगी, आपने ग्रामर का काम कराया होगा, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग्स भी उसमें कराई होंगी, जो भी आपने काम कराया। उर्दू के हैं तो सेम एज इट इज, साइंस के हैं तो 2-3 टॉपिक्स तो आपने जरूर कंप्लीट कराए होंगे। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स यू आर गोइंग टू डिवाइड देम अमंग योर चिल्ड्रन। ठीक है, आपने एक एक छोटा छोटा टॉपिक अपने उस बच्चे को दे दिया, उन 3 बच्चों का जो ग्रुप बनाया हुआ है, और आपने उन तीनों बच्चों को ये कहना है कि जो भी हमने इस टॉपिक के बारे में उस वीक में पढ़ा है दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द क्लासरूम। ये चीज आप क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे सबके सामने क्लासरूम में। ये हो गया फ्लिप क्लासरूम। इसमें आप जो है वो कुछ नहीं है, योर रोल इज नथिंग एक्सेप्ट गिविंग देम अ टॉपिक। आपका रोल कुछ नहीं है, ना आप बच्चे को टोकेंगे, ना आप बच्चे को डांटेंगे, ना आप बच्चे को डिग्रेड करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। वो गलत कहता है, सही कहता है, जो भी कहता है बच्चे उसको करेक्ट कर देंगे। बिलीव मी, जो आपकी क्लास होगी ना, बाकी बच्चे, टेल देम इफ ही से समथिंग, इफ द चाइल्ड से समथिंग रॉन्ग, तो दूसरे बच्चे जो उसके साथ है आइदर वो उसको करेक्ट करें या जो बाकी बच्चे क्लास में से हैं वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। योर रोल इज नथिंग बाय सिटिंग ओवर देयर। ठीक है, बस आपका रोल होगा कि आपने बैठना है और क्लास का एक स्मूथ एटमोस्फेयर को, मॉडरेट एटमोस्फेयर को आपने सामने रखना है, उसको उस पर आपने वर्कआउट करना है। अदरवाइज योर वर्क इज नथिंग एक्सेप्ट गिविंग देम टॉपिक्स। जब आप ये करेंगे ना, बिलीव मी, एक तो आप पूरे, हर बच्चा आएगा अपने ग्रुप में से अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा, गिव देम 5 to 6, 7 or 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा। 30 मिनट्स आप रखें, 5 मिनट्स आप बच्चों को दें कि वो आए और इजी वे में अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करें।
अब उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वो अपने घर से कुछ बना के लाना चाहें, उनकी पेरेंट्स उनको कुछ बनाने में हेल्प करें, कोई चीज एक्सप्लेन तो वो बच्चे ही कर रही है ना, वो कुछ भी उसका फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड कह रही हूँ, कुछ भी उसका जो एजुकेशनल एड बना के लाना चाहे वो बना के लेके आ सकते हैं। नॉट बिग बिग मटेरियल्स और समथिंग लाइक दैट, बिग प्रोजेक्ट्स ना हो, सिंपल पेपर पे कुछ हो। इसको हम शो एंड टेल एक्टिविटी भी कहती हैं और इसको हम फ्लिप क्लासरूम के टॉपिक्स भी कहती हैं। तो वो कुछ भी अपने छोटे छोटे कार्ड्स बना के लेके आ सकते हैं, जिसके थ्रू अपना वो टॉपिक दिखा सकते हैं आगे। जैसे बिल पर्स अगर वो स्टोरी कर रहा है, कोई स्टोरी आपने की है, तो वो छोटे छोटे स्टोरी के कार्ड्स बना के ला सकते हैं कि स्टोरी स्टार्ट यहाँ से हुई थी, मिड में यहाँ हुआ था, एंड में यहाँ हुआ था। अगर ग्रामर को यूज कर रहे हैं, न्यूमेरेसी को यूज कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन बच्चों को कह दें कि आप डिवाइड करके कुछ भी बना के ला सकते हैं। अगर केजी के बच्चे ये कर सकते हैं ना, 5 साल के 6 साल के बच्चे, तो बिलीव मी आपके बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वंस इन अ मंथ फ्लिप क्लासरूम को जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी क्लासरूम्स में। ठीक है, अब मुझे बता दें आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई? पार्टिसिपेंट्स, जी डियर, माइक टर्न ऑन करके तो समझा दें। अंडरस्टूड, यस मैम। यस, मॉन्टेसरी, आपको क्या कह रही है, ये मॉन्टेसरी के बच्चे हैं। पाकिस्तान में जो मॉन्टेसरी 1 और 2 के बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे वो हैं। ये मॉन्टेसरी 2 के बच्चे आप कह लें। आई एम टेलिंग यू, दे आर 5 years old। ठीक है, मॉन्टेसरी के बच्चे भी इसमें आएंगे। आपने उनको एबीसी कराई है ना, आपने उनको एबीसी पढ़ाई है या जो भी पढ़ाई है वो आप उनको बताएं। आप उनको कहें कि योर टॉपिक इज दिस, यू हैव रीड ऑल दीज लेटर्स इन योर प्रीवियस लेसन। तो आपने उन लेसन को एक्सप्लेन करना है। जी जी मैम, मैंने आपसे पूछना था कि आप तो ये अभी नॉर्मल बच्चों के हिसाब से बता रही हैं ना, जैसे आपने फ्लिप्ड क्लासरूम का बताया, उसमें ग्रुपिंग का और ये सारा, तो मैम ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ ये कैसे किया जाए? आप मुझे बताइए, आपके पास स्पेशल बच्चे कौन से बच्चे हैं? एडीएचडी बच्चे हैं, सेन बच्चे हैं, या डिसेबल बच्चे हैं? हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड। हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल बच्चे हैं ना? डिसेबल हाँ, बच्चे, जी जी, डिसेबल बच्चे कहती हैं उनको। बिल्कुल। उनके लिए ये है कि देखिए, जिस तरीके से आप उनको पढ़ाती हैं ना, आप भी तो उनको पढ़ा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहे हैं, अपने तरीके से जी जी, उनको नॉलेज दे रहे हैं ना। यस मैम, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपको? ऑटिज्म के अगर बच्चे यस आ मैम, जाएं बिल्कुल करते हैं। रिस्पॉन्ड करते हैं हैंडल ना, करेंगे। तो फिर वो क्यों नहीं कर सकती? ये जो भी टॉपिक आप उनको पढ़ा रही हैं, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स अगर किया हुआ है, तो वो जिस तरीके से भी इसको करना चाहे, आप उनको कहें कि वो लोग इसको प्लान करेंगे। आपका पढ़ाने का कोई मेथड तो होगा ना हेयरिंग और डिसेबल बच्चों को भी। यस मैम, साइन लैंग्वेज में हम लोग इनको करवाते हैं। बस, तो फिर उसी लैंग्वेज में आप इसको उनको करवाएं, उसी लैंग्वेज में उनकी ग्रुपिंग करें, उनको बताएं कि आपका इस तरह से होगा। नेक्स्ट वीक आपका छोटा सा आप लोगों ने, हमने फ्लिप क्लासरूम का, और बच्चे बहुत एक्साइटेड होती हैं। जब हमने अपने बच्चों के साथ ये शुरू किया, हमने 2 साल पहले ये चीज शुरू की थी यहाँ पर IB क्लासेस में। दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश करिकुलम में दिस थिंग इज वेरी कॉमन। तो हमने अपने बच्चों के साथ शुरू किया, हमने उनको कहा हम टीचर होंगे, हम स्टूडेंट होंगे और आप टीचर होंगे। तो वो इतने एक्साइटेड हुए, घर जाके बताएं कि हम लोग एक दिन के लिए टीचर बनेंगे। हम अपने टीचर को सिखाएंगे यस एक दिन के मैम, लिए। ठीक है, यही चीज यस, उनको इतनी मोटिवेट करेगी कि उन्होंने सिखाना है। टेल देम टू मेक इंडिया। अगर आपके बच्चे, जैसे आप कह रही हैं कि आप लोग हैं भी रूरल एरिया से, अगर आपके बच्चे घर कोई मटेरियल नहीं बना सकते, उनके पेरेंट्स उनको हेल्प नहीं कर सकते, उनको कहें आप स्कूल में बनाएं। एक दिन उनको, 2 दिन उनको दे दें, क्लास मटेरियल दे दें, या जो भी वो करना चाहते हैं। अगर मटेरियल के साथ नहीं भी करना चाहते, खाली वर्बल लर्निंग करना चाहते हैं, या जो भी आपकी साइन लैंग्वेज के थ्रू करना चाहती हैं, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। दिस इज द वर्बल लर्निंग क्लासरूम। ये जो क्लासरूम आपको मैंने दिखाई है, ये वर्बल लर्निंग की क्लासरूम है। इन्होंने अपनी फाइल्स यस, दिखाई अपने पेरेंट्स को। हमने इस सेशन में हमने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। हम भी टीचर एज अ स्टूडेंट थे वहां पे, और इनके पेरेंट्स भी एज अ स्टूडेंट थे वहां पर। मैं आपको पिछली पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पिक्चर देख रहे हैं जिसपे कर्सर है? दिस पिक्चर, 2 पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बच्चे उनको अपनी फाइल से एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, तो हमने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था, मदर्स को हमने इनवाइट किया था कि वो भी आए और वो भी पार्ट बने इस फ्लिप क्लासरूम का। और बच्चों ने हर चीज अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन की थी कि हम इस तरह से क्लास में काम करते हैं। मैम एक्सक्यूज मी, जी जी
मैम जैसे आपने टीचर का बोला कि टीचर जो होती है अगर उसको बच्चे को एक दिन के लिए टीचर बनाते हैं, वो घर जाता है बहुत खुश होता है कि मुझे आज टीचर ने टीचर बनाया, मैं वो खुद स्टूडेंट बनी। तो ऐसे हम होता है ऐसे कि किसी बच्चे का मॉनिटर बनाते हैं क्लास का, तो वो उसको कहते हैं कि आप पूरी क्लास होल्ड करो, तो वो एक तरह उसका मोटिवेशन होती है कि ऐसे कुछ जैसे कुछ किया हुआ होता है। देखिए मॉनिटर इज समथिंग एल्स। मैं आपको बताऊं मॉनिटरिज्म यहाँ यूएई में यूज नहीं होता, क्योंकि मॉनिटर सिस्टम जो है ना वो बहुत सारे बच्चों को जो है वो डीमोटिवेट भी करता है, ये बात याद हाँ रखिए, सही कह रही हैं। ठीक है ना। जी जी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत सारे बच्चों को बहुत हद तक डीमोटिवेट करता है व्हेन दे कांट डू दैट थिंग। हमारे मैम यहाँ इसलिए ना मॉनिटर कि सिस्टम वो नहीं एक है। बच्चा बनता है, एक बच्चा बनता है, अगर आप दूसरे बच्चे को नहीं बनाते वो कहता आपने मुझे नहीं बनाया। तो एग्जैक्टली वो और फिर देखिए ये दूसरे भी बच्चे की थोड़ा, टाइम बड़ी बाद में आती है, हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल करेक्ट राइट। ठीक है ना। हमारी जगह जी जी उसकी जगह ना हमारा होता है, हम लोग क्लास कुछ तो नहीं, हमारे क्लास एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, हम उसको क्लास एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देते हैं। उसमें ये होता है कि हम जी। वीकली 6 से 7 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट ड्यूटीज उन पे लगाते हैं। एक ने डोर क्लोज करना होता है, एक ने लाइट सेट करनी होती है, एक ने टेबल चेयर जो है वो सेट करना होता है, एक ने पेंसिल सेट करनी होती है, एक ने क्लासरूम जी क्लीन जी करनी होती है, एक ने बोर्ड क्लीन करना होता है। तो वो हमारा, एक ने बाहर बैग्स ठीक करने होते हैं क्योंकि हमारे बैग जो है वो क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में लाइन अप होती है पिजन होल्स में। तो एक ने वो, तो हमारे जी उसमें से जी 7 मॉनिटर्स होते हैं क्लास के, हम उनको क्लास एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। और उनकी जी ड्यूटी मैम। होती है ये सब कुछ करने की, लेकिन वो हर वीक चेंज होते हैं। उसमें ये होता है कि 7 बच्चे 7 ड्यूटीज एक दफा में खत्म कर देती हैं। तो 21 बच्चे भी हो तो आपके 3 हफ्तों में ये सारे बच्चे खत्म हो जाते हैं, फिर आप रिपीट कर लें उन बच्चों को, ठीक है। दैट इज मोटिवेटिंग। जी लेकिन मैम थैंक यू सो मॉनिटरिंग मच। मॉनिटरिंग थिंग के बच्चे को मॉनिटर बना दो, फिर उसमें एक बच्चों में ऐसा होता है कि वो दे बिकम अ लिटिल इगोइस्टिक आल्सो, और वो सोचते हो मैं तो पता नहीं क्या चीज बन गया हूँ, ठीक है ना। तो आई वी नेवर जी जी सपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ओवर हियर। जी मैम थैंक यू सो मच। आपको समझ आ गया ना, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी, अब मैं न्यू रिकॉर्डिंग शुरू करूंगी। नहीं है क्या, मैंने स्टॉप की रिकॉर्डिंग?